Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you to the third lecture on the course Organizational Behavior. Okay, before we start with the contents of this lecture, let's have a recap on our second lecture. As you know that we have so far discussed the introduction to organizational behavior in the first lecture. In the second lecture, then we discussed the model of employee behavior. So basically the objectives of that lecture were to give you a model or understanding at a macro level on how employee behavior is formulated within the organizations or in the organizational context. So when we discussed the employee behavior, we discussed a number of factors that are influencing the employee's behavior, right? So those factors are within the control of the organization, or they are beyond the control of the organization when the employee is working in the organization. So at the workplace, there are certain factors that are within the control of the organization and certain factors that are beyond the control of the organization, and alike there are certain factors that are within the control of the employees and certain factors are beyond the control of the employees, such as we see that within the organization, we discussed that one, there is an external environment at the macro level, right? So we discussed two types of environments. One was the macro environment or the external environment and at the macro level, and external environment also in the organization or within the organization, the environment, right? So it is external actually to the employee, but internal to the organization. So there are two types of environments that we discussed in here under the external environment thing, right? And we discussed that how the macro environment or the environment in which the organization is operating, how that influences the organization. And we discussed that in relation to that there are a number of factors that are actually influencing the external or the macro level environment. And with regards to that, we discussed that it's the such as we discussed that it is the economic conditions, the fluctuations in the markets, the fluctuations in the interest rates, the recessions going on in the economies, right? The booms, the troughs that are going on in the economies, which are actually disturbing the buying power of the consumers, right? And then a number of other factors such as the globalization, even how it impacts the employee behavior. So all the factors, they have the influence because the organization is, as we discussed, that it's not working in a standalone environment. It is interacting constantly with the outside world, right? And with that interaction, and since the employees, it's basically an organization is not something that is made up of bricks. It is in fact made up of people, and it's the people who are running that organization. So when the organization is influenced, in other ways, we mean that the employees are influenced by the external or by the market environment. So this gives me in my mind the examples, or the example of the globalization, that how the globalization that influences. So as a result of the, you see that as a result of the globalization, there are a lot of influences on the employees' behavior. In terms of, if you can you come up with, or can you think of the fact that the boundaries are now blurred between the organizations, and the geographical boundaries are even blurred. Have you ever thought of this? Have you ever heard of this? I'm sure it's not a new phenomenon for you people. You must have heard it frequently, that now the world is increasingly becoming a global village. This sentence is not very. This phrase is very commonly heard nowadays. That world is increasingly becoming a global village. Why? Because the geographical boundaries are blurring. Why are the geographical boundaries blurring? Because you see that there is convergence of the demands and there is convergence of the supply. So there is products की भी convergence हो रही है, और as a product services की convergence हो रही है, और customers की convergence हो रही है. ठीक है? तो it means कि जो products पहले एक specific part में produce होती थी, now you cannot say that. अब जैसे Walmart की हमने example अगर हम देखें, तो it's one of the largest retailers in the world, और इसकी worldwide it has existed वर्ल्ड वाइड. सारे वेस्टर्न जितना भी यूरोप है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इवन इन मैनी एशियन कंट्रीज इट हैज इट्स प्रेजेंस. ठीक है? तो इट हैज अ वेरी ह्यूज प्रेजेंस एंड इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट एंड लो कॉस्ट रिटेलर्स, एंड दे क्लेम कि उनकी दे हैव द लोएस्ट प्राइसेस अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर देयर रिटेलर गुड्स.
अब what they do is that they are basically they don't have एक कोई किसी कंट्री का आप ये नहीं कह सकते कि इनका यहाँ का ओरिजिन है। ये जैसे नोकिया है तो उसका बेसिकली फिनलैंड का ओरिजिन है, बट इट हैज वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस। ठीक है, आप उसको किसी स्पेसिफिक कंट्री के साथ रिलेट करना बहुत डिफिकल्ट हो गया बिकॉज ऑफ उनकी जो सेल्स हैं इनकी प्रोडक्ट्स की, और उनकी अपने लोकल जो कंट्री है, उनका नेशनल जो कंट्री है या कंट्री ऑफ ओरिजिन है, उसमें उनकी सेल्स इतनी नहीं है जितने उनके इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं, जितनी उनकी प्रोडक्ट्स की इंटरनेशनल डिमांड है। इसी तरह जैसे जापानीज ऑटोमोबाइल कार्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसकी आप देखें कि कितनी डिमांड है अमेरिका में। अमेरिका में जितनी फ्रीक्वेंटली आपको जापानीज ऑटोमोबाइल्स मिलेंगी उतनी अमेरिकन ओरिजिन की नहीं मिलेंगी। व्हाई? बिकॉज दीज कार्स आर मच मोर कंपेटिटिव एंड दे आर एट अ लोअर प्राइस। उनकी जो कंपैरेटिव जो कार्स हैं उनके कंपटीशन में, जो जापानीज कंपटीशन में जो कार्स अमेरिका की हैं उस उतनी कैपेसिटी की और उस उतनी मॉडल स्ट्रेंथ की, दे वैल्यू मच मोर देन द कॉस्ट दैट आर ऑफर्ड बाय द जापानीज, क्योंकि उनका लीन प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है एंड ऑल दैट। बट हम यहाँ पे हमारा पॉइंट ये है कि जो एम्प्लॉय बिहेवियर है वो इस तरह से इन्फ्लुएंस होता है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो रही है, मार्केट्स जो हैं उनमें कन्वर्जेंस हो रही है, मार्केट जो है वो ग्लोबल हो गई है। अब आप ये नहीं कह सकते कि जी ये पाकिस्तान का प्रोडक्ट है, इसकी ये पाकिस्तान की मार्केट है, तो ओके वेल यू कैन से इट टू सम एक्सटेंट पाकिस्तान के रेफरेंस है, तो आप शायद इसलिए कह भी सकें क्योंकि हमारी इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स नहीं है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ लिमिटेशंस एंड नंबर ऑफ गवर्नेंस इशूज़, ये इस तरह के जो दूसरे इशूज़ हैं उनकी वजह से शायद हमारी इतनी ग्लोबल प्रेजेंस नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। या डेवलपिंग कंट्रीज की दे हैव अ नंबर ऑफ लिमिटेशंस बिकॉज उनकी इतनी कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं होती, तो इसलिए उनकी इतनी ग्लोबल प्रेजेंस नहीं होती है जितनी दूसरी हो सकती है, जितनी की होनी चाहिए। लेकिन चाइना, आप देख सकते हैं कि चाइना ने अपनी स्ट्रेटजीज की वजह से हाउ इट हैज गेन प्रेजेंस ग्लोबली, उनकी इंटरनेशनल मार्केट है उनकी प्रोडक्ट्स की, एंड एवरीवेयर इन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स at very low prices, at the prices at lower prices, but you know price discrimination करके वो सेल आउट करते हैं, उनकी ये स्ट्रेटजी है। तो क्वालिटी और प्राइस जो है वो एज पर अकॉर्डिंग टू द कंट्री, कि वो कंट्री किस तरह का है, वहाँ पे किस तरह की प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करनी है एज, और वहाँ पे डिमांड किस तरह की है, किस टाइप के कस्टमर्स हैं, तो कंसिडरिंग ऑल दैट अपनी मार्केट स्ट्रेटजी उन्होंने डिवाइस की हुई है, और वो वहाँ पे हर जगह और एवरीवेयर हर इकोनॉमी को वो टफ टाइम दे रहे हैं। दे आर गिविंग वेरी टफ टाइम टू द अमेरिकन इकोनॉमी। ठीक है, वहाँ पर जो चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं दे आर वेरी मच कॉमनली फाउंड देयर एंड दे आर हाई इन डिमांड एंड दे आर सो एवरीवेयर इन द वर्ल्ड बिकॉज वो एक सफिशिएंट और रीजनेबल क्वालिटी ऑफर करते हैं एट अ लोअर प्राइस देन द वन दैट इज प्रेवलेंट इन द लोकल मार्केट। तो इस तरह से इसका सारी चीज़ों का क्या रिजल्ट निकल रहा है। अब वॉलमार्ट की जैसे हमने एग्जांपल ली, तो वॉलमार्ट व्हाट इट इज डूइंग इज दैट ये आउटसोर्स करता है चीपर जो लेबर है उसको फ्रॉम द कंट्रीज। इनकी फैक्ट्रीज इन्होंने अपनी वो लो कॉस्ट कंट्रीज में फैक्ट्रीज लगाई हुई हैं। वाई? बिकॉज इट वांट्स टू टेक यू नो बेनिफिट ऑफ द चीपर लेबर एंड सो दैट इट कैन उसकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लोअर हो और अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो लो कॉस्ट के ऊपर ऑफर कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से वो so they have their factories largely based in India में और China में in order to take benefit of the low costs that are prevalent there, right? Similarly जितनी भी especially आपकी जो कॉस्ट ओरिएंटेड फर्म्स हैं जो या जो आपकी लेबर इंटेंसिव फर्म्स हैं वो जैसे नाइके हो गया या दूसरी जो गवर्नमेंट की फर्म्स हैं M&S वगैरह हो गया, मार्क्स एंड स्पेंसर, नाइके जो लेदर वेयर और फुटवेयर की फर्म्स हैं, दे आर इंक्रीजिंगली दे हैव देयर एग्जिस्टेंस अपनी वो इंक्रीज कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग का जो अपनी कंसर्न्स हैं वो उनको इंडिया में और चाइना में लगा रहे हैं इन ऑर्डर टू फॉर द सेम रीजन, सो दैट वो अपनी कॉस्ट जो है लोअर कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्शन कर सकें और उसको लो कॉस्ट के बेनिफिट्स जो हैं वो रीप कर सकें। ठीक है, तो वो जो लेबर उनको पहले हाई कॉस्ट के ऊपर अपने लोकल कंट्रीज में मिल सकती है, बिकॉज इन द वेस्टर्न कंट्रीज लेबर जो है वो दैट इज नॉट चीप, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव लेबर। ठीक है, और उसकी एक वजह ऑफ कोर्स ये भी है कि वहाँ पे जो प्रोडक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो लोअर है, इतनी उनकी पॉपुलेशन एवरेज पॉपुलेशन नहीं है जितनी इन कंट्रीज में, एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पे चीपली लेबर अवेलेबल है। ठीक है, तो अब इन बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, एक तो आप देखिए कन्वर्जेंस है मार्केट में, दूसरा ये इस तरह से भी कंज्यूमर टेस्ट और में भी कन्वर्जेंस है। जैसे जीन्स वगैरह हैं, यू कैन सी दैट दे आर नाउ
पहले वो एक वेस्टर्न ड्रेस होता था, नाउ अब इट्स वेरी कॉमन इन ईस्ट एज वेल। अब एशियन कंट्रीज में, एशिया में या दूसरे जो कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट्स हैं, एवरीवेयर यू कैन से दैट जीन्स की डिमांड जो है वो बहुत है और बहुत इट इज़ इंक्रीजिंग एवरी डे। ठीक है, तो ये क्या है, टेस्ट में कन्वर्जेंस है, कंज्यूमर डिमांड्स में कन्वर्जेंस है। इसी तरह कोक है, अब कोक इंटरनेशनल, अब एक इट इज़ एन इंटरनेशनल मार्केट अगेन। ठीक है, कोक इट्स नॉट ड्रंक ओनली इन वेस्ट और इन द यूरोप या दूसरे, बट इट्स ऑल्सो इन द ईस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी कोक को अब इसी तरह ही पिया जाता है, उसकी भी उसी तरह डिमांड है। तो इस तरह से कन्वर्जेंस हो रही है डिमांड में प्रोडक्ट्स की, एज ए रिजल्ट कंज्यूमर जो मार्केट है उसमें कन्वर्जेंस हो रही है, डिमांड में सप्लाई दोनों चीज़ों में कन्वर्जेंस है। तो उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट ऑफ कोर्स डायरेक्टली एम्प्लॉइज पे है और एम्प्लॉय बिहेवियर पे है। जब बाउंड्रीज ब्लर हो रही हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज जब ब्लर हो रही हैं, तो अब जब आपकी इंटरनेशनल डिमांड है तो एज अ रिजल्ट उसकी इंटरनेशनल मैनेजमेंट के लिए, इंटरनेशनली मैनेजर्स के लिए यही इम्प्लीकेशंस हैं, या एचआरएम के लिए ये इम्प्लीकेशंस हैं उसकी कि वो इंटरनेशनली अपनी रिक्रूटमेंट्स वगैरह और सिलेक्शंस वगैरह एक्सेट्रा वो इंटरनेशनली करने की वो कोशिश करते हैं। ठीक है, और डिमांड जो एज अ रिजल्ट जो है वो लेबर की पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो उस स्पेसिफिक होम कंट्री से होगी या होस्ट कंट्री से होगी या किस नेशनल से होगी, वो उसमें इंक्रीजिंगली उनकी जो रेशोज हैं दे आर बीइंग मिक्स्ड। ठीक है, और जैसे जो वाइट कंट्रीज हैं, वाइट कंट्रीज हैं जैसे वेस्टर्न वगैरह, वाइट पीपल के जो कंट्रीज हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ पे अब आप ये देखें कि वाइट का जो प्रोपोर्शन है वो इतनी मेजॉरिटी में, उनकी मेजॉरिटी डिक्लाइन हो रही है और जो ब्लैक है उनका प्रोपोर्शन इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज नाउ द बाउंड्रीज आर बीइंग ब्लर्ड एंड एज अ रिजल्ट पीपल जो है वो मोबिलिटी उनकी इंक्रीज कर रही है आहिस्ता आहिस्ता, बिकॉज द जॉब्स जो हैं वो इंटरनेशनली एडवर्टाइज होती हैं और ऑनलाइन जॉब्स अवेलेबल हैं, इंटरनेशनली अवेलेबल हैं। टारगेट मार्केट जो अब मैनेजर्स की या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की है वो एक लोकल कंट्री या कंट्री ऑफ ओरिजिन नहीं होता, बल्कि वो इंटरनेशनली दे आर लुकिंग फॉर जॉब्स। ठीक है, अक्रॉस द ग्लोब भी वो जॉब्स को देख रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं। तो एज अ रिजल्ट वो जो है वो लेबर जो है, अब आपने देखा है कि पाकिस्तान में या स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में क्या है कि ब्रेन ड्रेन का ट्रेंड होता है, तो द पीपल दे आर लेबर जो है वो इंक्रीजिंगली मूव करती है आउटवर्ड्स टू द अदर कंट्रीज जहाँ पे उनको बेहतर ऑफर्स होती हैं, बेहतर अपॉर्चुनिटीज उनको मिलती हैं, सो दे मूव आउट देयर। अब उसका ये इम्प्लीकेशंस हैं कि जो मोबिलिटी ऑफ लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा एज अ रिजल्ट बढ़ गई है बिकॉज ऑफ दीज मार्केट चेंजेस, सो दे आर इन्फ्लुएंसिंग द एम्प्लॉइज बिहेवियर इन वेज दैट, एक तो जो एम्प्लॉइज हैं वो उनको इन चांसेस हैं कि वो दे गो आउटसाइड, दूसरा उसमें यह है कि जो एग्जिस्टिंग हैं उनके ऊपर भी इम्प्लीकेशंस हैं कि जो आपकी लोकल मार्केट है उसकी क्या डिमांड और सप्लाई है, बिकॉज वो ग्लोबली अफेक्ट हो रही है। इसी तरह उसकी प्राइसेस जो हैं वो ग्लोबली अफेक्ट हो रही हैं, इंटरनेशनली प्राइस वॉर चल रही है बहुत ज़्यादा बिकॉज ऑफ दीज कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स। वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्डर है उसके बाद से एक फ्री ट्रेड रिजीम भी बन गई है, एज अ रिजल्ट आपकी जो एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स वगैरह टैरिफ्स आर इंक्रीजिंगली रिड्यूसिंग। तो ये सारी चीज़ें एक मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है जिसको आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये क्या मैकेनिज्म्स हैं, हाउ दे आर इन्फ्लुएंसिंग द एम्प्लॉय बिहेवियर। तो दे आर डायरेक्टली बेसिकली इन्फ्लुएंसिंग बिकॉज दे आर इन्फ्लुएंसिंग द ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे इन द फॉर्म ऑफ टैरिफ्स वगैरह आपको इन्फ्लुएंस करते हैं कि और देयर आर नंबर ऑफ अदर वेज आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ही फॉर एग्जांपल वो इन्फ्लुएंस कर देते हैं। अब जैसे चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं, व्हेन दे आर कमिंग इनटू योर मार्केट, तो उसके आपके लोकल मार्केट पे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे, आपकी कंपनीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट होंगे जब आपकी जो सिमिलर प्रोडक्ट्स जो आप प्रोड्यूस कर रहे थे वो एक चाइनीज मार्केट में और चीपर रेट के ऊपर अगर मार्केट में वो अवेलेबल हैं, हाउ इट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस योर प्रोडक्ट्स, योर मार्केट, योर कस्टमर्स, हाउ इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट देम। ऑफ कोर्स कस्टमर्स जो हैं अगर उनको एक सिमिलर क्वालिटी की प्रोडक्ट एट लोअर प्राइस, चीपर प्राइस मिल रही है तो ऑफ कोर्स दे विल गो फॉर दैट। ठीक है, तो अब इसके हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट यू, ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट द एम्प्लॉइज डायरेक्टली। ठीक है, और इन टर्म्स ऑफ उनकी जॉब सिक्योरिटी की टर्म्स में उनको अफेक्ट कर रहा है, कंपेटिटिवनेस की बेसिस के ऊपर उनकी फॉर्म में उनको इफेक्ट कर सकता है और उनको प्रोडक्टिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रेशर्स की फॉर्म में उनको अफेक्ट कर सकता है, रोटेशंस उनकी हो सकती हैं। सो देयर कैन बी अ नंबर ऑफ वेज जिसमें वो आपको अफेक्ट कर सकता है। और इस तरह की सिचुएशंस में बड़ी बात यह है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इन ऑर्डर टू अचीव द फ्लेक्सिबिलिटी, इस तरह के कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स जब हों तो उनकी कोशिश यही होती है कि वो इंक्रीजिंगली एम्प्लॉइज को जो है वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की बेस के ऊपर ना रखें, बल्कि वो दे प्रेफर करती हैं कि वो एम्प्लॉइज को शॉर्ट टर्म उसके ऊपर रखें, कि उनको कॉन्ट्रैक्ट की बेस के ऊपर रखें या परमानेंट बेसिस के ऊपर ना रखें। एंड यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि अब इंक्रीजिंगली हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन में
कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस के ऊपर होती हैं, बट नॉट ऑन द परमानेंट बेसिस, यानी कि परमानेंट आपको जॉब नहीं मिलती ऑर्गेनाइजेशंस में इंक्रीजिंगली, एक्सेप्शनल अगर केसेस हों तो दैट इज एक्सेप्ट फॉर वेरी एक्सेप्शनल जो जॉब्स होती हैं या जो बहुत टॉप मैनेजमेंट की हैं, इस तरह की जो जॉब्स होती हैं। अदरवाइज स्पेशली जो बिगिनर्स की हायरिंग है वो तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर ही हो रही है। वाई? बिकॉज इट ऑफर्स ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमने पहले बात की कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है ऑर्गेनाइजेशन को, उसके एम्प्लॉइज के ऊपर अगेन कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्योंकि एम्प्लॉइज को जब कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जॉब मिलती है इसका मतलब उनको लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी का प्रॉमिस जो पहले एम्प्लॉइज को अवेलेबल होता था दैट इज नो लॉन्गर अवेलेबल टू देम। ठीक है, अब उनकी जॉब उस तरह की सिक्योर नहीं है, इट्स जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब, जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है। एंड आफ्टर दैट पीरियड जब वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड फिनिश हो गया तो आफ्टर दैट ऑफ कोर्स वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूएबल होते हैं, बट ऑफ कोर्स देयर इज नो सिक्योरिटी, देयर इज नो गारंटी दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी रिन्यूड और नॉट, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी देयर। ठीक है, तो उसके एम्प्लॉइज के ऊपर क्या इंप्लीकेशंस हैं, इनसिक्योरिटी आ गई उनको, सो इट्स अ डायरेक्ट इंप्लीकेशन ऑन द एम्प्लॉय बिहेवियर। तो ये सारी चीजें हैं। फिर हमने लेबर मार्केट कंडीशंस डिस्कस की, फिर हमने और इन टर्म्स ऑफ इसको टैक्सेस की, टैरिफ्स की फॉर्म में, अदर गवर्नमेंट रेगुलेशंस की फॉर्म में रेगुलेटरी बॉडीज कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं ऑर्गेनाइजेशन को, देन दे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द एम्प्लॉयज बिहेवियर। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये मैक्रो एनवायरनमेंट में हमने देखी। इसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एनवायरनमेंट है, विद रिस्पेक्ट टू दैट हमने ये देखा कि कैसे जो है ऑर्गेनाइजेशन का अपना जो एनवायरनमेंट है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है, और फिर उसमें जॉब्स को आपने कैसे डिजाइन करना है, ये सारी चीजें जो है दे आर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसे इन्फ्लुएंस करता है, क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन का कैसे इन्फ्लुएंस करता है, हाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन रीडिजाइन द जॉब्स, यू हैव अ नंबर ऑफ ऑप्शंस एट द ऑर्गेनाइजेशन दैट आर अवेलेबल टू यू, जो कि एम्प्लॉइज के बिहेवियर को पॉजिटिवली मॉडिफाई कर सकते हैं या इन्फ्लुएंस जो करती हैं चीजें एम्प्लॉय बिहेवियर को, एंड दे आर कंट्रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन कि ऑर्गेनाइजेशन क्या इंटरवेंशन यूज करके उनको किस तरह से मॉडिफाई कर सकती है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने दूसरे जो फैक्टर्स देखे थे, वर्क एनवायरनमेंट का देखा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देखा, और इंटरनल एनवायरनमेंट में हमने देखा कि एटीट्यूड्स एंड नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज। तो अभी एटीट्यूड्स, सो वी सी के इंटरनल एनवायरनमेंट यानी कि विच इज स्पेसिफिक टू द एम्प्लॉई और हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ठीक है, तो वो उसके अपने से रिलेटेड है, इंटरनल है उस एम्प्लॉई का। बाकी जो फैक्टर्स हैं वो एक्सटर्नल हैं, एंड दिस इज सो देयर इज समथिंग इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉई एज वेल, और दैट रेस्ट विद द एम्प्लॉई एज वेल, दैट हाउ द एम्प्लॉई के क्या एटीट्यूड्स हैं, उसकी क्या नॉलेज स्किल एबिलिटी का सेट है, और वो कैसे इन्फ्लुएंस करेगा उसके बिहेवियर को। तो आज की जो हमारा लेक्चर है उसमें हम इन फैक्टर्स को एक डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एम्प्लॉइज के जो एटीट्यूड्स हैं वो एम्प्लॉय बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, उनका क्या रोल है एम्प्लॉय एटीट्यूड्स का, और दूसरा नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज एम्प्लॉइज की, डू दे इन्फ्लुएंस एम्प्लॉइज बिहेवियर। सो दिस इज अ फूड फॉर थॉट फॉर यू अगेन एज वेल। जब मैं इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछती हूँ तो इसका मकसद ये होता है कि आप बिफोर लिसनिंग टू मी ट्राई टू थिंक थ्रू योरसेल्फ। ठीक है, कि आपके ख्याल में ये चीजें क्या मैकेनिज्म हो सकता है, व्हाट डू यू थिंक इज द लॉजिकल या रैशनल वे, क्या हो सकता है कि इनके क्या रिलेशनशिप्स हो सकते हैं इन चीजों के, या हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी एड्रेस्ड। ठीक है, तो उसको एक आधा मिनट लगा के सोचा करें, थिंक दैट थ्रू एंड देन मूव फॉरवर्ड। इसमें अब आप ये देखें कि जो एटीट्यूड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू एटीट्यूड्स एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। सो ऑफ कोर्स हम थोड़ा सा एटीट्यूड्स, वी विल डिस्कस अ नंबर ऑफ एटीट्यूड्स इन हियर। मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दूंगी और हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे डिफरेंट एटीट्यूड्स को। प्लस हम जॉब सेटिस्फेक्शन को भी देखेंगे, क्योंकि जॉब सेटिस्फेक्शन इज ऑल्सो एन एटीट्यूड, बट of course we will not be limiting ourselves to job satisfaction, but we will be discussing a number of other attitudes as well. ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा फोकस जो है आपकी बुक में जिसको मैंने आपको रेफर किया है, रॉबिन्स एंड जज की बुक है जो, इसमें थोड़ा सा एम्फेसिस ज्यादा, उन्होंने फोकस ज्यादा जॉब सेटिस्फेक्शन पे किया हुआ है। तो दे हैव बेसिकली डज नॉट मीन कि जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट एटीट्यूड है, या उसको दे जस्ट पिक्ड वन एंड इलेबोरेटेड ऑन दैट एंड ट्राइड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑन हाउ जॉब सेटिस्फेक्शन इज इन्फ्लुएंसिंग द एम्प्लॉय बिहेवियर्स। ठीक है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे एटीट्यूड्स जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो लेस इंपॉर्टेंट हैं और दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। मैं आपको उनकी भी एक्सप्लेनेशन दूंगी, और समटाइम्स मैं आपको एक्सप्लेनेशन कुछ चीज़ों की फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ज़्यादा दे रही होती हूँ। मे बी उतनी एक्सप्लेनेशन आपको जब आपको बुक को रेफर करेंगे तो उसमें अवेलेबल ना हो कुछ चीज़ों की।
ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ों की एक्सप्लेनेशन उतनी ज़्यादा आपकी बुक में अवेलेबल ना हो, बट मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन उनकी दे रही होती हूँ, बेसिक लेवल से आपको एक्सप्लेनेशन दे रही होती हूँ, बिकॉज आई नो कि आप लोगों का दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ स्टार्टिंग और इनिशियल लेवल है आप लोगों का फॉर दिस कोर्स, एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू वुड बी स्टडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। देयरफॉर मैं कंसिडरिंग कि आप दिस इज़ अ न्यू कोर्स फॉर यू पीपल, मैं आपको उसकी इस तरह से एक्सप्लेनेशन दे रही होती हूँ ताकि आप उसको, आपकी अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छी डेवलप हो जाए। बट डोंट वरी, अगर उनमें से कोई चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे व्हाट आई हैव स्पोकन हियर या जो आपके पावर पॉइंट्स में या स्लाइड्स में मिसिंग है वो या वो बुक में भी मिसिंग है, तो वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करी, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दैट इज़ फॉर योर नॉलेज एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन एंड फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। उसको आप मेनली आपको जो आपको इवेल्युएट किया जाएगा या जो आपके असाइनमेंट्स, क्विजेज और टेस्ट होंगे या एग्जाम होगा आपका, वो आपका उसी कंटेंट में से होगा जो आपको बुक में अवेलेबल है, जो बुक आपको रेफर की जाएगी या जो इन पावर पॉइंट्स में अवेलेबल है। तो पावर पॉइंट्स ऑफ कोर्स दे आर नॉट फॉर प्रिपरेशन, this is should be clear to you that PowerPoints कोई प्रेपरेशन के लिए नहीं है, और ये चीज़ें आपको मैंने शुरू में भी मेरे ख्याल आगाह की हैं कि PowerPoints जस्ट एक रेफरेंस पॉइंट होता है, वो उनमें ना कोई एक्सप्लेनेशन होती है, ना वो प्रेपरेशन के लिए होती हैं और ना नोट्स प्रेपरेशन के लिए हैं। फॉर प्रेपरेशन यू हैव टू रेफर टू द बुक, जिस बुक से वो जो भी उससे रिलेटेड चैप्टर है या टॉपिक है बुक में, उसको आप डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी रीडिंग डिटेल में करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। आपका क्वेश्चन पेपर, आपका क्विज़ेस, असाइनमेंट्स, एवरीथिंग विल बी सेट फ्रॉम देयर, ठीक है। वो वहां से सेट होगा और जो आपके आंसर्स हैं वो उस जो पॉइंट्स आपको आपके बुक में गिवन है उन्हीं के अगेंस्ट आपको उसमें इवेलुएट भी किया जाएगा। ओके, सो फॉर टुडेज लेक्चर आई वाज टेलिंग यू कि हम एटीट्यूड्स को डिस्कस करेंगे और कैसे इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय बिहेवियर, ठीक है। जो हमने एटीट्यूड्स और नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज की बात की कि वो कैसे एम्प्लॉय बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो अब अभी आज हम वो देखने जा रहे हैं। तो मेन कंपोनेंट्स एटीट्यूड्स के आज हम देखेंगे कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एटीट्यूड्स, कि एटीट्यूड्स का हम देखेंगे व्हाट डज इट मीन एंड व्हाट डज एटीट्यूड एंड एटीट्यूड कंप्राइज ऑफ। फिर हम देखेंगे डज बिहेवियर ऑलवेज फॉलो फ्रॉम एटीट्यूड्स, ठीक है, because we say that the behavior follows from attitude. So we'll discuss it in detail in our next slides. Then what are the major job attitudes? ठीक है, then we'll be seeing this. मैंने जैसे आपको बताया, I'll give you a few examples, उनकी elaboration आपको दूंगी for your better understanding. Then we'll see that how to measure job satisfaction, how satisfied people are with their jobs. So what is the level of people satisfaction with their jobs? We'll try to have a look on this. Then we will be seeing the impact of satisfied and dissatisfied people on workplace. How do they influence the workplace? The satisfied and dissatisfied people. Then we'll be seeing job satisfaction and national culture. तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो हम इंशाल्लाह आज के कोर्स में, आज के लेक्चर में इंशाल्लाह we hopefully will be able to cover. Okay, so let's start with the attitudes. So what do you think attitudes are? एक तो हमने commonly जो attitude use होता है वो किस तरह से use होता है, आप लोग किस तरह से use करते हैं, how you are familiar with this word attitude. हम इस तरह से इसको यूज करते हैं कि हम कहते हैं उसका बहुत एटीट्यूड है, ठीक है, वो तो ठीक तरह से बात नहीं करता या करती, ठीक है, इज वेरी रूड और शी इज वेरी रूड, उसका बहुत एटीट्यूड है, ठीक है, और इस तरह से, तो या एटीट्यूड दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको एटीट्यूड को जो हमारी जो लैंग्वेज है जिसमें यूज किया जाता है नॉर्मली, जो ये वर्ड इस तरह से सुना जाता है, तो व्हाट डज इट मीन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में एटीट्यूड का क्या मीनिंग है, या उसकी लिटरेरी मीनिंग या उसका डिक्शनरी मीनिंग क्या है एटीट्यूड का। एटीट्यूड्स आर बेसिकली इवेलुएटिव स्टेटमेंट्स और जजमेंट्स कंसर्निंग ऑब्जेक्ट्स, पीपल और इवेंट्स, ठीक है। तो ये दीज आर बेसिकली द स्टेटमेंट्स हैं या जजमेंट्स हैं जो हम फॉर्मुलेट करते हैं, वो जजमेंट्स या वो स्टेटमेंट्स जो हम फॉर्मुलेट करते हैं अबाउट द अदर पीपल, वो लोगों के बारे में भी हो सकती हैं, अबाउट द डिफरेंट इवेंट्स के बारे में हो सकती हैं, जैसे कि कॉन्फ्रेंस है तो उसके बारे में मेरी कोई इवेलुएटिव जजमेंट या स्टेटमेंट हो कि ये इट इज लाइक दिस, सो दैट इज माई जजमेंट, दैट इज माई इवेलुएटिव स्टेटमेंट कि इट इज अ हाई प्रोफाइल कॉन्फ्रेंस, या इसमें हाई कैलिबर्ड पीपल आर देयर, या ये एक लोअर लेवल की कॉन्फ्रेंस है। सो
आई विल बी बेसिंग माई जजमेंट्स ऑफ कोर्स ऑन सर्टेन थिंग्स, जो कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटर्स होंगे उनके ऊपर मैं उसको बेस करूंगी, या जो पेपर्स प्रेजेंट हो रहे हैं उनकी क्वालिटी के ऊपर बेस करूंगी, और ऑन अदर रीजंस उनके ऊपर बेस करके मैं अपनी एक इवेलुएटिव जजमेंट या स्टेटमेंट अपने माइंड में या अपने आई विल हैव अ स्टेटमेंट अबाउट इट, आई विल हैव जजमेंट अबाउट इट कि भाई ये चीज इस तरह की है, ये इवेंट इस तरह का था, इट वॉज नॉट अ सक्सेसफुल इवेंट और इट वॉज अ सक्सेसफुल इवेंट। ठीक है, अच्छा, अब ये मेरी इवेल्युएशन हो गई इसके बारे में, या जजमेंट हो गई। इसी तरह हम लोगों के बारे में हमारी जजमेंट्स, दैट वो बंदा फलां बंदा किस तरह का है, अभी वो बहुत इंटेलिजेंट है, या वो ही इज एक्सट्रीमली गुड रिसर्चर, ठीक है, या वो ही इज वेरी प्रोलिफिक रिसर्चर। तो ये मेरे दिस इज माई इवेल्युएशन, दिस इज माई जजमेंट अबाउट दैट पर्सन। और इसी तरह ही हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में अपनी जजमेंट्स जो है वो बना सकते हैं। तो बेसिकली एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट्स हैं। वन इज द कॉग्निटिव, which is the opinion or belief segment of an attitude। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 components होगा एटीट्यूड के। इट इज फॉर्म्ड विद दीज 3 डिफरेंट components। एक तो जैसे हमने देखा कि कॉग्निटिव component है इसका, तो कॉग्निटिव कंपोनेंट अब क्या हो गया कि जो ओपिनियन या बिलीफ हम बना लेते हैं अबाउट ऑफ एन एटीट्यूड। ठीक है, दिस बेसिकली दिस इज द ओपिनियन और बिलीफ सेगमेंट ऑफ एन एटीट्यूड, कि किसी भी चीज के बारे में जो हमने ओपिनियन या बिलीफ बना लिया। उसके बाद अफेक्टिव इसका कंपोनेंट है, विच इज द इमोशनल और फीलिंग सेगमेंट ऑफ द एटीट्यूड। ठीक है, एक तो फिर दूसरा उसका इमोशनल एस्पेक्ट हो गया उस एटीट्यूड का। ठीक है, जैसे मेरी इमोशनल अटैचमेंट हो या इमोशनल अंडरस्टैंडिंग हो किसी कॉन्फ्रेंस के साथ, आई हैव बीन अटेंडिंग इट अगेन एंड अगेन ओवर एंड ओवर, सो आई हैव सम इमोशनल मेरा कंपोनेंट भी है जो मेरे उस एटीट्यूड को फॉर्म करने के पीछे है। सो वो एक सेगमेंट भी उसमें है। एक तो उसमें ओपिनियन है मेरी उसके बारे में क्या है, दूसरा ये कि मेरी कोई इमोशनल या अफेक्टिव मेरा कंपोनेंट उसके साथ होगा। ठीक है, और तीसरा क्या है, बिहेवियरल है, विच इज एन अटेंशन टू बिहेव इन अ सर्टेन वे टुवर्ड समवन और समथिंग। ठीक है, तो that is basically that how you behave towards something or someone, so that is your behavioral component। तो ये 3 तरह के components हो गए कि आप किस तरह से behave करना चाहते हैं, कि आपकी intentions किस तरह की हैं, एक चीज ये चीज determine करती है। दूसरा affective component यानी कि आपका emotional जो component है या feelings का जो component है वो हो गया, और तीसरा ये हो गया कि आपकी opinion या feelings उसके बारे में। तो ये 3 चीजें मिलके attitude को determine करती हैं। Thus, we can say that attitudes basically are the evaluative statements which are either favorable or unfavorable concerning objects, people or events। तो of course आपकी जो evaluative statements हैं या judgments हैं वो favorable भी हो सकती हैं और unfavorable भी हो सकती हैं। अब इनमें आपका कोई भी component जो है वो ज़्यादा या कम हो सकता है। जो हमने 3 components देखे attitudes के, ठीक है, cognitive देखा, behavioral देखा और affective देखा, तो इनमें से कोई भी component जो है, तीनों components मिलके attitude बना रहे हैं ना, तो अब आप किसी एक कंपोनेंट में इनमें से हाई हो सकते हैं, किसी एक कंपोनेंट में इनमें से लो हो सकते हैं। यानी जैसे आपका इफेक्टिव कंपोनेंट इट कुड बी कि वो बहुत हाई हो और जो दूसरा कंपोनेंट है बहुत लो हो या अनफेवरेबल हो। तो एज अ रिजल्ट जो इनकी सबमिशन होगी, जो एवरेज होगा, वो आपका ओवरऑल कंपोनेंट बनेगा और वो डिटरमिन करेगा कि आपका एटीट्यूड फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। तो इट इज कंसर्निंग एनीथिंग सच एज ऑब्जेक्ट्स, पीपल और इवेंट्स। सो एटीट्यूड्स रिफ्लेक्ट हाउ वन फील्स अबाउट समथिंग ऑन द होल, कैसे आप उसके बारे में फील करते हैं। So that's what an attitude is। अच्छा, अब इसके बाद आप ये देखें कि consistency of attitudes। People seek consistency among their attitudes and between their attitudes and their behavior। ठीक है, तो ये consistency जो है ये नॉर्मली एक जो ह्यूमन बींग्स हैं या इंडिविजुअल्स या एम्प्लॉयज़ हैं जो रैशनली स्पीकिंग जो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो पीपल जो है दे सीक कंसिस्टेंसी बिटवीन द एटीट्यूड एंड देयर बिहेवियर, because when there is an inconsistency it means that there is a discrepancy। ठीक है, एटीट्यूड्स और बिहेवियर में जब इनकंसिस्टेंसी हो तो इट्स नॉट रैशनल। ठीक है, वो एक दैट विल कॉल फॉर डिसोनेंस, इट इज अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स। इस चीज को हम लेके आगे फर्दर चलते हैं। पहले लेट मी बिल्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स, फिर हम जब कॉग्निटिव डिसोनेंस पे आएंगे आगे कुछ स्लाइड्स के बाद एक आएगी स्लाइड विच विल बी अबाउट द कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो वो जो डिसोनेंस है वो बेसिकली दैट डील्स विद दिस डिस्क्रिपेंसी, कि जब कंसिस्टेंसी नहीं होती है बिटवीन द एटीट्यूड्स और बिटवीन द एटीट्यूड एंड द बिहेवियर, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि दैट इज डिसोनेंस। तो उसकी जब एग्जांपल्स में एटीट्यूड और बिहेवियर के एक एग्जांपल भी कोई पिक करूंगी एंड देन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि इनकंसिस्टेंसी कैसे होती है और हाउ इट कॉजेज द डिसोनेंस। ठीक है,
अच्छा, सेल्फ परसेप्शन थ्योरी बेसिकली ये कहती है कि एटीट्यूड्स जो हैं वो बिहेवियर को डिटरमिन नहीं करते, बल्कि बिहेवियर्स जो हैं वो एटीट्यूड्स को डिटरमिन करते हैं। ठीक है, ये दिस इज व्हाट द सेल्फ परसेप्शन थ्योरी सेज। नॉर्मल जो हमारा आगे है, कुछ स्लाइड्स छोड़ के एक स्लाइड आएगी जिसमें आपको मैंने पहले भी जब मॉडल ऑफ एम्प्लॉय बिहेवियर हमने पढ़ा उसमें भी ये एक्सप्लेनेशन दी कि जो एटीट्यूड्स हैं वो बिहेवियर को डिटरमिन करते हैं, इसलिए हमें एटीट्यूड्स को इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टडी द एटीट्यूड्स। व्हाई स्टडी द एटीट्यूड्स? पहले हमने बिहेवियर वाले जो मॉडल जब हमने देखा तो उसमें हमने इसकी बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन की कि व्हाई वी स्टडी द एम्प्लॉय बिहेवियर। ठीक है, मॉडल ऑफ एम्प्लॉय बिहेवियर को क्यों स्टडी करते हैं या क्या उसकी जरूरत है स्टडी करने की? व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड एम्प्लॉय बिहेवियर। ठीक है, उसकी क्या इंप्लीकेशंस हैं? तो हमने उसका कंक्लूजन ये निकाला कि उसकी बहुत सीरियस इंप्लीकेशंस हैं फॉर द मैनेजर, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द एम्प्लॉय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ठीक है, उसकी बहुत सीरियस इंप्लीकेशंस हैं बिकॉज वो एम्प्लॉयज को हर तरह से उनकी पर्सनल लाइफ में इफेक्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉय का बिहेवियर जो है एट द वर्क प्लेस, ठीक है, वो इंडिविजुअल्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, इंडिविजुअल आउटकम्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है और ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम्स को वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो दोनों को इन्फ्लुएंस कर सकता है और दोनों के लिए उसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं। देयरफॉर इट इज रियली क्रिटिकल टू स्टडी एम्प्लॉय बिहेवियर। अब जब हम एटीट्यूड्स को डिस्कस करते हैं तो again I raise this question to you that why study attitudes? ठीक है, क्यों जरूरत है एटीट्यूड्स पढ़ने की? तो of course why? Because research shows that there is a strong linkage between attitudes and behaviors. बिहेवियर्स को क्या चीज डिटरमिन करती है? एटीट्यूड्स डिटरमिन करते हैं। ऑफ कोर्स बिहेवियर को दूसरी चीजें भी डिटरमिन करती हैं। जब हमने मॉडल ऑफ एम्प्लॉय बिहेवियर देखा तो उसमें हमने 3 तरह की चीजें देखी थी ना, 2 एक्सटर्नल थी और एक इंटरनल थी। तो इंटरनल में क्या था? एटीट्यूड्स था एक जिसको हम देख रहे हैं, दूसरा केएसएस थी। तो अभी हम एटीट्यूड्स को देख रहे हैं कि एटीट्यूड्स एम्प्लॉय बिहेवियर को डिटरमिन करते हैं। ठीक है, कि आपका एटीट्यूड किस तरह का है, हाउ फेवरेबल और अनफेवरेबल टू यू सी समथिंग, सम इवेंट, सम पीपल और एनीथिंग। तो दैट डिटरमिन योर बिहेवियर। Okay, अब so this is what the research shows, this is what the we have the जो हमारी theory है वो हमें ये बताती है और हमारी research हमें ये बताती है कि attitudes behavior को determine करते हैं। अगर आपके attitudes positive होंगे तो behavior भी आपका positive होगा और अगर आपके attitudes negative होंगे तो behavior भी आपका negatively influence होगा। ठीक है, तो इसलिए दैट इज वाई एंड बिकॉज बिहेवियर के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल के लिए इन टर्म्स ऑफ द आउटकम्स एट द पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस दैट बिहेवियर एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस दैट बिहेवियर इज द एटीट्यूड्स एंड दैट इज वाई वी आर स्टडिंग एटीट्यूड्स हियर। ठीक है, और अब एटीट्यूड्स जो हैं वो उसमें हम ये देखते हैं कि देयर आर अ नंबर ऑफ जो हैं वो यहाँ पे जो सेल्फ परसेप्शन थ्योरी है ये बेसिकली ये कहती है ऑन द अदर हैंड कि एटीट्यूड्स डू नॉट डिटरमिन बिहेवियर बट द बिहेवियर डिटरमिन्स एटीट्यूड। ठीक है, सो इट सेज दैट इट इज द अदर वे अराउंड। It's not that the attitudes are determining the behavior, but it is that the behavior is determining the attitude. कि जो भी आपका behavior होगा, it argues that attitudes they are used after the fact to make sense out of an action that has already occurred, rather than as devices that precede and guide action. ठीक है, तो आप का जो है वो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बिहेवियर की कुछ एग्जाम्पल्स दी थी, जैसे जॉब परफॉर्मेंस मैंने दी। यहाँ पिछले मॉडल ऑफ एम्प्लॉय बिहेवियर में हमने 2 तरह के बिहेवियर्स की देखे थे ना, जॉब परफॉर्मेंस देखा था और उसी भी देखा था। तो अगर हम जॉब परफॉर्मेंस को पिक कर लें तो एज पर दिस थ्योरी क्या है कि आपका जो हमने ये देखा कि जॉब परफॉर्मेंस को क्या कौन सा एटीट्यूड डिटरमिन करता है। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि जॉब सेटिस्फेक्शन इज एन एटीट्यूड, जैसे मैंने आपको पहले बताया। वी से कि जॉब सेटिस्फेक्शन डिटरमिन्स द जॉब परफॉर्मेंस। ठीक हो गया, तो जॉब सेटिस्फेक्शन इज लिंक्ड टू जॉब परफॉर्मेंस और इट इज डिटरमिनिंग द जॉब परफॉर्मेंस कि जितने आप सेटिस्फाइड वर्क अपने काम जॉब के साथ ज्यादा होंगे उतने ही आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। अब इसमें जॉब सेटिस्फेक्शन इज एन एटीट्यूड एंड जॉब परफॉर्मेंस इज अ बिहेवियर। अच्छा, अब इन टर्म्स ऑफ दिस थ्योरी इसकी क्या इम्प्लीकेशन है? इस थ्योरी में इसकी ये इम्प्लीकेशन है कि जॉब परफॉर्मेंस इज अ बिहेवियर। तो इसमें यह है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में तो फिर आप सेटिस्फाइड होंगे जॉब के साथ। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस अगर अच्छी होगी तो देन यू विल बी सेटिस्फाइड विद योर जॉब।
ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इफ आई एम डूइंग सम वर्क, अगर मैं कोई काम कर रही हूँ ऑफिस में, अपना मेरा टास्क है कोई, ठीक है, तो अगर इफ आई एम एबल टू परफॉर्म ऑन दैट टास्क ओनली देन आई विल बी सेटिस्फाइड विद माय जॉब। अगर मैं उसको परफॉर्म नहीं करूंगी तो मैं तो सेटिस्फाइड नहीं होंगी अपनी जॉब के साथ। हाउ कैन आई बी सेटिस्फाइड विद माय जॉब, बिकॉज मुझे तो इनसिक्योरिटी होगी एंड डिसकंटेंटमेंट होगी, मुझे प्रेशर होगा फ्रॉम द बॉस, फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। आई विल बी परसीविंग कि मुझे इंक्रीमेंट्स नहीं मिलेंगे, रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे, मुझे अपना जो स्टे है विद द ऑर्गेनाइजेशन, मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके रिन्यूअल का मुझे फियर हो जाएगा। देयर विल बी अ नंबर ऑफ फियर्स दैट आई विल बी हैविंग। आई विल बी द फियर दैट आई विल हैव द फियर दैट आई विल बी रिप्लेस्ड, आई विल बी डिमोटेड और अ नंबर ऑफ अदर फियर्स दे विल कम इन माय माइंड, ठीक है। तो इस तरह से मैं अपनी जॉब पे सेटिस्फाइड नहीं रह सकूंगी, बिकॉज कोई भी मेरे जॉब सेटिस्फेक्शन के जो भी एलिमेंट्स हैं जो हम आगे फ्यूचर में डिटेल में थोड़ा सा जाके देखते हैं, तो सिंस वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो इसलिए मेरा तो जॉब के ऊपर सेटिस्फाइड रहना इस तरह से मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए दिस इज व्हाट दिस थ्योरी सेज कि जो आपका परफॉर्मेंस है वो डिटरमिन करती है आपके एटीट्यूड्स को, या जो आपका बिहेवियर है वो आपके एटीट्यूड्स को डिटरमिन करता है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर ही आप सेटिस्फाइड होंगे, अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। अच्छा, टेंड टू इन्फर एटीट्यूड फ्रॉम बिहेवियर व्हेन यू हैव हैड फ्यू एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग एन इशू, ठीक है। तो आपका जो भी एक बिहेवियर हुआ या जो भी हैपनिंग हुई उसके बेस के ऊपर यू विल फॉर्म योर एटीट्यूड्स। अगर वो बिहेवियर पॉजिटिव था या जो भी हैपनिंग हुई इफ दैट वाज पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल अगर हम इसी परफॉर्मेंस को पिक करें तो अगर परफॉर्मेंस पॉजिटिव थी दैट वाज अ बिहेवियर, सो इफ दैट सिचुएशन इज पॉजिटिव और दैट बिहेवियर इज पॉजिटिव और दैट एक्सपीरियंस इज पॉजिटिव, यानी यू आर परफॉर्मिंग, यू आर शोइंग गुड रिजल्ट्स, तो उसके रिजल्ट में आपकी एक फेवरेबल सिचुएशन बन जाएगी। आपकी जो इवेल्युएटिव जजमेंट है या जो आपकी इवेल्युएशन है वो पॉजिटिव होगी एज अ रिजल्ट, वो आपके एक फेवरेबल एटीट्यूड को दैट विल लीड टू अ फेवरेबल एटीट्यूड, दैट विल गिव बर्थ टू अ फेवरेबल एटीट्यूड, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दिस थ्योरी सेज। ओके, सो व्हाट आर द मेजर जॉब एटीट्यूड्स। जब हम जॉब एटीट्यूड्स की बात करते हैं तो व्हाट आर द मेजर जॉब एटीट्यूड्स, इसमें देखिए एक तो आपको फिर अब आपको डिस्टिंक्शन बहुत ज़रूरी है आपके माइंड में ये होनी चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाउ वी डिफर बिटवीन द, अगर मैं आपको जैसे कहूँ कि इज एटीट्यूड और बिहेवियर का, अगर मैं आपको कहूँ टर्नओवर, इज टर्नओवर एन एटीट्यूड और अ बिहेवियर, व्हाट वुड यू से, ठीक है, थिंक ओवर इट। यू शुड बी एबल टू, अगर आपको कुछ कॉन्स्ट्रक्ट्स दिए जाएं, कुछ वेरिएबल्स दिए जाएं, तो आपको उनमें डिस्टिंक्शन जो है वो यू शुड नो हाउ टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन दोज। एटीट्यूड में और बिहेवियर में डिस्टिंक्शन जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट क्या है, इज दैट एन एटीट्यूड और अ बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए, डिस्टिंक्शन आपको पता होनी चाहिए इनमें। लॉजिकली आर्गुमेंट विद आर्गुमेंट्स यू शुड बी एबल टू टेल कि एटीट्यूड क्या है और बिहेवियर क्या है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स अभी बताती हूँ जॉब एटीट्यूड्स की। तो उनमें एक तो हम देख लेते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन, ठीक है। जॉब सेटिस्फैक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट जॉब एटीट्यूड, सो इट्स बेसिकली अ पॉजिटिव फीलिंग अबाउट द जॉब रिजल्टिंग फ्रॉम एन इवेल्युएशन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बेसिकली जब जो जॉब हम परफॉर्म कर रहे हैं उसके देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट फैसेट्स हैं उस जॉब के, ठीक है ना। उस जॉब के डिफरेंट फैसेट्स हैं जिसकी बेस के ऊपर आप कहते हैं कि आपको जॉब सेटिस्फेक्शन है या नहीं है। तो उसके जॉब की क्या फैसेट्स हैं, उसमें नंबर ऑफ थिंग्स आ जाती हैं, जैसे सेटिस्फेक्शन आपकी वर्क एनवायरनमेंट के साथ आ गई, सेटिस्फेक्शन विद सुपरविजन आ गई अगर आपका सुपरवाइजर है, सेटिस्फेक्शन विद बॉस आ गई, उसका ये एलिमेंट हो सकता है। सारे जितने भी जॉब के वर्क प्लेस के एलिमेंट्स हैं सारे, वो आपके सब के सब जॉब सेटिस्फेक्शन को डिटरमिन करते हैं ना, दे ऑल डिटरमिन योर जॉब सेटिस्फेक्शन। तो आपकी कोवर्कर्स आ गए, उनके साथ सेटिस्फेक्शन आपकी क्या है, आपके बॉस के साथ, आपकी कोलीग्स के साथ, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, आपकी अपने रूम के साथ, ऑफिस के साथ, वर्किंग कंडीशंस के साथ। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपकी पे के साथ सेटिस्फेक्शन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स तो ये हैं कि आपकी पे, रिवॉर्ड्स वगैरह, प्रमोशंस वगैरह, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसीजर्स हैं उनके साथ आपकी सेटिस्फेक्शन, रिसोर्सेज आपके पास कितने अवेलेबल हैं, तो ये सारी चीजें आपकी सुपरवाइजर वगैरह, तो ये मेन जो एस्पेक्ट्स हैं वो ये हैं, ठीक है। इन चीजों के साथ आपकी सेटिस्फेक्शन, तो इट इज बेसिकली जॉब सेटिस्फेक्शन जो है इट इज बेसिकली पॉजिटिव फीलिंग, वेदर यू हैव अ पॉजिटिव फीलिंग और नॉट अबाउट द जॉब, ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम एन इवेल्युएशन ऑफ इट्स। जितनी भी जॉब की कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने आपको जैसे बताई हैं उनकी आप इवेल्युएट करेंगे। अगर आप ये देखेंगे कि वो पॉजिटिव हैं तो इट मीन्स कि आपकी पॉजिटिव फीलिंग होगी,
ठीक है, अगर आप सेटिस्फाइड हैं अपनी पे के साथ, रिवॉर्ड्स के साथ, कुछ सारी चीज़ों के साथ, तो आपकी ऑफ कोर्स जॉब सेटिस्फेक्शन भी आपको होगी। और अगर आपकी पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं है तो इट मीन्स दैट यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर जॉब, देयर इज जॉब डिससेटिस्फेक्शन। ठीक है, अच्छा, अब जॉब इन्वॉल्वमेंट आ गई दूसरी। जॉब इन्वॉल्वमेंट इज द डिग्री ऑफ साइकोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन विद द जॉब वेयर परसीव्ड परफॉर्मेंस इज इम्पोर्टेंट टू सेल्फ वर्थ। ठीक है, तो जॉब हाउ इन्वॉल्व यू आर with the work that you are doing. So psychological identification, कितना आप identify करते हैं psychologically with the job where perceived performance is important to self worth. ठीक है, तो वहाँ पे आप उस जॉब के साथ कितना इन्वॉल्व हैं जहाँ पे आपकी जो परफॉर्मेंस जिसको परसीव कर रहे हैं विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर ओन सेल्फ वर्थ। ठीक है, तो हाउ इन्वॉल्व यू आर, हाउ आइडेंटिफाई साइकोलॉजिकली, हाउ मच यू आइडेंटिफाई विद दैट, सो दैट इज जॉब इन्वॉल्वमेंट। अब जरूरी नहीं है कि जॉब इन्वॉल्वमेंट हो तो जॉब सेटिस्फेक्शन भी हो। तो ओके, लेट्स, ये जो लिंकेजेस हैं इनके ऊपर थोड़ा सा बाद में बात करते हैं। अच्छा, अब उसके बाद साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट आ गई। सो साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट क्या है? दैट इज बेसिकली कि हाउ एम्पावर्ड यू फील साइकोलॉजिकली। तो ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट? नंबर ऑफ थिंग्स डिटर्मिन कर सकती हैं, लेकिन वो belief, it is basically the belief in the degree of influence over the job, competence, job meaningfulness and autonomy। यानी जितनी आपके पास autonomy ज़्यादा होगी, जितनी आपके पास job meaningful ज़्यादा होगी, जितनी आपकी competence ज़्यादा होगी, आपके पास skills, knowledge, abilities जितने ज़्यादा होंगे, उतना ही आप psychologically ज़्यादा empowered feel करेंगे। ठीक है, आप साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट है ना आपकी एट वर्क। फॉर साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट किस चीज़ से बढ़ सकती है? आप जस्ट रैशनली अगर आप देखेंगे, सोचें, बहुत फैक्टर्स इसको डिटरमिन कर सकते हैं। देखिए, एक तो मैंने बताया जितनी आपको एक्सेस होगी रिसोर्सेज के, ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज के ज़्यादा होगी, यू विल फील मोर एम्पावर्ड साइकोलॉजिकली। आप ऑटोनॉमी ज़्यादा, जितनी आपके पास ऑटोनॉमी ज़्यादा होगी, आपके पास आप कंट्रोल्ड ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, आपकी जो सुपरविजन है जितनी कम होगी, आप उतना ही ज़्यादा साइकोलॉजिकली एम्पावर्ड फील करेंगे। ठीक है, यू विल फील वर्थ, यू विल फील मीनिंगफुलनेस की सेंस आएगी, सेल्फ वर्थ की सेंस आएगी, यू विल फील इम्पॉर्टेंट, यू विल बी फीलिंग सिग्निफिकेंट, आप साइकोलॉजिकली एम्पावर्ड फील करेंगे। इफ द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज लेस एंड लेस कंट्रोल्स ऑन यू, तो उतने ही आप ज़्यादा एम्पावर्ड फील करेंगे। जितने, जैसे अगर आपके पास कोई अथॉरिटी है तो फिर भी आप अगेन ज़्यादा पावरफुल फील करेंगे, साइकोलॉजिकली एम्पावर्ड फील करेंगे आप। ठीक है, अगर आपके बॉस के साथ फॉर एग्जाम्पल अच्छे रिलेशनशिप्स हैं तो दैट विल अगेन एनहांस योर साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट। ठीक है, यू विल फील साइकोलॉजिकली एम्पावर्ड। जैसे जिन लोगों के अपने बॉस के साथ या सुपरवाइजर के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स होते हैं, आप देखें, आप लॉजिकली देखें कि वो साइकोलॉजिकली ज़्यादा एम्पावर्ड फील करते हैं कंपेयर टू दोज पीपल हु डोंट हैव गुड रिलेशनशिप्स विद देयर सुपरवाइजर्स और विद देयर बॉसेस। सो देयर आर अ नंबर ऑफ things that influence psychological empowerment and it basically आपकी positive या negative जो favorable या unfavorable feelings हैं उनको psychological empowerment draw करती है। ठीक है, तो these are only your feelings हैं कि आप कितना empowered feel करते हैं। Again, it's just a feeling। ठीक है, actually it's not कोई material outcome नहीं है, it is just a feeling how empowered you feel psychologically। इसी तरह satisfaction हो गई या involvement होगी, वो भी again they are just feelings, how you feel about the job, उसकी contents के बारे में कैसे फील करते हैं आप, जो है वो कितना इन्वॉल्व फील करते हैं। तो ये सारे क्या हैं? एटीट्यूड्स हैं, बिकॉज दे आर जस्ट योर इवेल्युएशंस, योर जजमेंट्स एंड योर फीलिंग्स बेस्ड ऑन दोज इवेल्युएशंस एंड जजमेंट्स, वेदर यू हैव पॉजिटिव फीलिंग्स और नेगेटिव फीलिंग्स। तो अगर आप साइकोलॉजिकली एम्पावर्ड फील नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी नेगेटिव या अनफेवरेबल फीलिंग्स हैं। सो एटीट्यूड्स दे आर, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, there are person's general positive or negative feelings toward person, place, thing, event or idea। ठीक है, they tend to be very stable and hard to change, right? because देखिए, आपके जो situations हो रही होती हैं, जो happening हो रही होती है, events हो रहे होते हैं और whatever, उनकी base के ऊपर there is a series of events on the basis of which your attitudes are formulated। ठीक है, और
then once they are formed, it's difficult to change them. Then attitudes, they are important in training. For example, does the trainee intend to use the training or ignore it? ठीक है, तो अब आपका ये एटीट्यूड है ना, जैसे ट्रेनिंग है, ऑर्गेनाइजेशन एक ट्रेनिंग बड़ी एक्सपेंसिव अरेंज करती है, ठीक है, लेकिन जो एम्प्लॉई है, जो ट्रेनी है, वो उसकी कोई इंटेंशन ही नहीं है वो उस ट्रेनिंग में, फॉर एग्जाम्पल फॉर्म भरने के लिए अगर वो उस ट्रेनिंग में आ गया है, अगर उसका एटीट्यूड ही नहीं है, इफ इज नॉट फेवरेबल, ही इज नॉट पॉजिटिव अबाउट दैट ट्रेनिंग, ठीक है, तो वो उसका क्या होगा, उसमें स्किल्स, ही विल नॉट लर्न द स्किल्स, और अगर वो कर ले, लर्न कर भी ले, तो मे बी अगर उसके पास, इफ ही इज नॉट सीरियस अबाउट इट, तो ही मे नॉट इम्प्लीमेंट दो स्किल्स, ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो ट्रेनिंग है उसकी इफेक्टिवनेस विल बी वेरी लिमिटेड बिकॉज ऑफ द नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉय टुवर्ड्स दैट ट्रेनिंग, और ऑफ द ट्रेनी टुवर्ड्स दैट ट्रेनिंग. सो हम कुछ चीजें एटीट्यूड्स के बारे में कह सकते हैं. वन, we can say that attitudes determine behavior but not directly. ठीक है, तो why? एक तो चीज हमने देख ली कि अगेन सेटिस्फेक्शन और परफॉर्मेंस की ही एग्जांपल को पिक करते हैं. तो सेटिस्फेक्शन डिटरमिन्स परफॉर्मेंस, ठीक है, तो इसमें क्या है कि लेकिन ये जो रिलेशनशिप है एक्चुअली ये इतना डायरेक्ट नहीं होता, ठीक है, एक्चुअली द रिलेशनशिप इज कैरिड थ्रू इंटेंशंस, ठीक है, और सम अदर मीडिएटर इसमें इन्वॉल्व होता है, रिलेशनशिप में कोई लिंकेज इन्वॉल्व होता है, ठीक है. तो जैसे अगर आप सेटिस्फाइड हैं जॉब में, इट कुड बी कि आप ज़्यादा एम्पावर्ड फील करें एज अ रिजल्ट, और फिर उसका नतीजा ये निकले कि आप पॉजिटिवली परफॉर्म करें, ठीक है. या अगर आप सेटिस्फाइड हैं जॉब के लिए, तो आपकी इंटेंशंस टू लीव दैट जॉब विल बी लोअर, एंड एज अ रिजल्ट यू विल परफॉर्म बेटर एट जॉब. आपकी उस जॉब के साथ ही कमिटमेंट ज़्यादा होगी, आप उसी जॉब को फिर परफॉर्म करेंगे. तो एटीट्यूड जो है, नॉर्मली इट इज स्टेटेड दैट एटीट्यूड जो है वो पहले इंटेंशंस फॉर्मुलेट होती हैं एज अ रिजल्ट ऑफ एटीट्यूड, और फिर उसके बाद बिहेवियर अल्टीमेट जो है वो डिटरमिन होता है. तो पहले वो एटीट्यूड्स दे लीड टू इंटेंशंस एंड देन द इंटेंशंस लीड टू बिहेवियर. सो एटीट्यूड्स डू नॉट डायरेक्टली डिटरमिन द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज. तो इसमें फिर ये कि रिएक्शंस टू फीडबैक और अदर एम्प्लॉई एटीट्यूड्स कैन हैव इम्प्लीकेशंस फॉर एचआरडी इंटरवेंशंस सच एज ट्रेनिंग एंड कैरियर प्रोग्राम्स, ठीक है. तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एम्प्लॉइज के जो एटीट्यूड्स हैं उनकी ऑफ कोर्स इम्प्लीकेशंस हैं एचआर प्रोग्राम्स पे, उनकी सक्सेस के ऊपर. एम्प्लॉइज अगर नेगेटिवली भी उनका एटीट्यूड है तो उनका बिहेवियर नेगेटिव होगा, ठीक है. तो देयरफॉर इस चीज़ को ऑर्गेनाइजेशंस को, मैनेजर्स को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि एम्प्लॉइज के एटीट्यूड्स क्या हैं और क्यों हैं, ऑन व्हाट, किन जजमेंट्स पे फॉर्मुलेटेड हैं, किन इवैल्यूएशंस पे फॉर्मुलेटेड हैं. अगर फॉर एग्जांपल जैसे ट्रेनिंग का ही है, अगर ऑर्गेनाइजेशन एक ट्रेनिंग अरेंज की है और एम्प्लॉइज अगर ये परसीव करते हैं कि द ट्रेनिंग इज नॉट गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम, इट्स नॉट रेलिवेंट फॉर देम, तो उनका उस ट्रेनिंग की तरफ एटीट्यूड विल बी नॉट फेवरेबल, एंड एज अ रिजल्ट वो दे विल नॉट लर्न एनीथिंग आउट ऑफ इट, एंड देयर वॉन्ट बी एनी ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग और ट्रांसफर ऑफ स्किल्स जो है वो नहीं होगी, तो वो सक्सेसफुल नहीं होगी. तो बिकॉज ऑफ द नेगेटिव एटीट्यूड्स ऑफ द एम्प्लॉइज. तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए यही आउटकम लर्निंग लेसन है कि उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए एम्प्लॉई के एटीट्यूड्स को, उनकी वैल्यूएशंस को, स्टेटमेंट्स को, और वो व्हाई दे आर फॉर्म्ड, ठीक है. और वो उनको दे शुड, व्हाइल मेकिंग सच प्रोग्राम्स, दे शुड टेक देम इनटू कंसिडरेशन बिकॉज ये प्रोग्राम्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं. इफ दे आर नॉट इफेक्टिव देन दे आर ओनली गोइंग टू एड टू द कॉस्ट एंड नॉट रिजल्ट इन एनी बेनिफिट्स. नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज का मैंने आपको बताया था कि वो भी इन्फ्लुएंस करती हैं एम्प्लॉय बिहेवियर को. ऑफ कोर्स जितनी आपके अंदर एबिलिटीज ज़्यादा होंगी, जितनी कैपेसिटी ज़्यादा होगी टू परफॉर्म, ठीक है, उतना ही आपका जो है बिहेवियर अल्टीमेटली पॉजिटिव होगा. और बिहेवियर में क्या है, जैसे परफॉर्मेंस हो गई, इनोवेटिव बिहेवियर्स हो गए, क्रिएटिव बिहेवियर्स हो गए, ओसीबीज हो गए, या दूसरे प्रोएक्टिव बिहेवियर्स हो गए. तो इस तरह के नंबर ऑफ अदर बिहेवियर्स जो हैं वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ द एबिलिटीज़. अगर आपके पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है परफॉर्म करने के लिए, तो फिर ये ऑफ कोर्स आपके पॉजिटिव बिहेवियर्स होंगे. इफ़ यू आर नॉट कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग, तो आपका बिहेवियर कैसे पॉजिटिव हो सकता है. दूसरी चीज स्किल्स है. अगेन स्किल्स क्या है, इट इज कंबाइंस एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज, ठीक है. सो इट इज दे आर डेवलप्ड थ्रू द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ठीक है. तो स्किल्स जो है, जैसे हमने देखा कि दे कैन बी लर्नड, ट्रेनिंग वगैरह के थ्रू आप स्किल्स जो है उनको लर्न कर सकते हैं. ओके, देन वी हैव द नॉलेज विच इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्टर्स और प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ठीक है, कि आपको नॉलेज कितना है किसी भी चीज़ का, किसी प्रिंसिपल का, किसी सब्जेक्ट का, किसी टास्क का,
ऑफ कोर्स जितना नॉलेज आपका ज़्यादा होगा, जितनी स्किल ज़्यादा होंगी, जितनी एबिलिटी ज़्यादा होंगी, उतनी ही आपकी परफॉर्मेंस भी हायर होगी. तो इट सेज दैट knowledge, skills and abilities is a function of performance. Then we have the HRD programs which mostly focus on changing skills and knowledge. ठीक है, तो आपका नॉलेज को इन्हांस करने के लिए, आपके स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ये होते हैं, और एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए होते हैं. ठीक है, दे आर बेसिकली द HRD प्रोग्राम्स, HRD इंटरवेंशंस. इसलिए आप लगाते हैं ना ट्रेनिंग वगैरह, कि आपके जो एटीट्यूड्स हैं वो पॉजिटिव हो सकें, आपकी जो नॉलेज एंड स्किल्स एंड एबिलिटीज़ हैं वो इन्हांस हो सकें, सो दैट आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव कर सके. ठीक है, तो ये जो एटीट्यूड्स के बारे में ये चीज़ें ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है और देख ली है कि एटीट्यूड्स के 3 कंपोनेंट्स हैं, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड बिहेवियरल. अच्छा, ये टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स की ये आई थिंक दिस इज अ रेपिटेशन इन द स्लाइड एंड आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, बट एनीवेज सॉरी फॉर दिस. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं. सेटिस्फेक्शन और इन्वॉल्वमेंट हमने डिस्कस किए है, इट्स अ स्लाइटली डिफरेंट स्लाइड. अच्छा, और कमिटमेंट हमने डिस्कस नहीं किया. सो ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट जो मैंने आपको इनिशियली क्वेश्चन भी पूछा था, तो इट्स अ टाइम टू आंसर दैट. ठीक है, तो आप अपने टैली करें आप आंसर्स को कि आपने क्या दिया था. आई एम श्योर कुछ आप में से एटलीस्ट सम ऑफ यू मस्ट हैव stated that organizational commitment is a behavior. Okay, but organizational commitment is an attitude. ठीक है, so it is the degree to which you identify with the organization and its goals and wishing to maintain membership in the organization. ठीक है, तो इसमें 2-3 चीज़ें आ गई हैं ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट में. एक तो आपकी सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन आ गई ऑर्गेनाइजेशन में. दूसरा है कि आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ यू वांट टू स्टे विद द ऑर्गेनाइजेशन, यू वांट टू कीप योर मेंटेन योर मेंबरशिप विद द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ये चीज़ें इसके अंदर आ गई. सो इसकी ये बेसिकली दैट इज़ वाई बिकॉज इट्स जस्ट अ फीलिंग टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन कि हाउ कमिटेड यू फील. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ एक फीलिंग है ना, ये कोई आउटकम नहीं है. इट्स नॉट एन आउटकम, इट्स जस्ट अ फीलिंग. तो ये क्या है कि आपका एटीट्यूड है, इट्स योर एटीट्यूड. दूसरी हम एग्जाम्पल एटीट्यूड्स की क्या है, परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट. अगेन इट्स एन इम्पॉर्टेंट एटीट्यूड and again of course it's not an outcome, it's the degree to which employees feel that the organization cares about their well-being. कि आप क्या फील करते हैं, आपकी क्या परसेप्शंस हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि वो आपकी जैसे डिमांड्स हैं, आपकी नीड्स हैं, उनके बारे में कितना रिस्पॉन्सिव है, हाउ मच केयरिंग द ऑर्गेनाइजेशन इज टुवर्ड्स यू. ठीक है, आपको क्या चांसेस मिल रहे हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, वो कैसे, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद यू, कितनी वो केयरिंग है आपके लिए. दैट इज परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट. जितना आप ये परसीव करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन केयर्स फॉर यू, केयर्स फॉर योर वेल बीइंग, उतने ही आपका ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा. सो इट्स एन एटीट्यूड. ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉय इंगेजमेंट इज एन अदर एटीट्यूड, जस्ट अनदर एग्जांपल ऑफ एन एटीट्यूड. सो इन एंगेजमेंट इज अगेन द डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट, सेटिस्फैक्शन एंड एंथुजियाज्म फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो हम अगर एंगेजमेंट के लिटरेचर को डिटेल में पढ़ें तो इसमें 2-3 एलिमेंट्स आ जाते हैं. एक विगर होता है इसमें, एक इसमें डेडिकेशन होती है, और एक इसमें विगर, डेडिकेशन एंड एब्जॉर्प्शन. सो ये 3 इसकी बेसिकली एलिमेंट्स हैं. ठीक है, कि एब्जॉर्प्शन कितना आप एब्जॉर्ब्ड फील करते हैं उस जॉब में, कि यू आर नॉट, आपको इधर उधर की कोई होश नहीं है, जिसको हम कहते हैं आप इतने काम में अपने फंसे हुए, इतने ज़्यादा आप इंडल्ज हैं अपने काम में. तो दैट इज़ बेसिकली द डिग्री टू विच यू आर इंगेज्ड, उसको शो करना है कि आप कितने एब्जॉर्ब्ड हैं उस काम में. विगर यानी कितने आप, हाउ विगरस यू आर, हाउ एंथुसियास्टिक यू आर अबाउट दैट जॉब. ठीक है, डेडिकेटेड, हाउ डेडिकेटेड यू आर टुवर्ड्स दैट वर्क. ठीक है, तो ये सारी चीज एलिमेंट्स हैं, एंगेजमेंट को शो करते हैं. तो ये बेसिकली सारी चीजें जो हैं ये अगेन आपके एटीट्यूड है. दिस इज ऑल योर एटीट्यूड, आप वर्क टुवर्ड्स वर्क. ठीक है, ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स के कितना आप लाइक करते हैं उस काम को, क्या आपको रिवॉर्ड सिस्टम वगैरह के ऊपर भी डिपेंड करता है. ठीक है, ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स अगेन आपकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है अपने काम के साथ, ये इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है. बट अगेन ऑफ कोर्स ये एक एटीट्यूड है बिकॉज इट्स वेदर फेवरेबल या अनफेवरेबल इन एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है. एटीट्यूड सर्विस आप यू मस्ट बी फेमिलियर के ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो करवाती हैं इन ऑर्डर टू नो के एम्प्लॉयज़ के सेटिस्फेक्शन, कमिटमेंट वगैरह को जानने के लिए, फीडबैक लेने के लिए उनसे. तो ये सर्वेज वगैरह जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस करवाती हैं इन ऑर्डर टू नो दैट हाउ employees feel about their jobs, their work groups, about their supervisors, about the organization, so that the organization can know whether it needs to bring any improvement or not. जॉब सेटिस्फैक्शन को जो मेजर करना है उसकी देयर आर बेसिकली 2 ways with which the job satisfaction is measured. जैसे मैंने आपको बताया कि इसको जॉब सेटिस्फैक्शन की थोड़ी सी इसमें ज़्यादा उन्होंने डिटेल आपकी बुक में कैप्चर की हुई है, तो हम इसी को देख लेते हैं.
बाकी एग्जांपल्स मैंने आपको आई हैव गिवन यू ऑफ अ नंबर ऑफ एटीट्यूड्स। अब जो सिंगल एक ग्लोबल रेटिंग है उसकी और दूसरी सबमिशन स्कोर है। तो मैंने आपको बताया कि इसकी काफ़ी सारी डायमेंशंस है जॉब सेटिस्फेक्शन की हो सकती हैं, ठीक है। तो आप मतलब जैसे जॉब सेटिस्फेक्शन है उसका 6 आइटम स्केल आप ले लें, तो उसमें क्या होगा, पे से कितने सेटिस्फाइड हैं, प्रमोशन से कितने सेटिस्फाइड हैं, सुपरवाइजर से कितने सेटिस्फाइड हैं, कोवर्कर से कितने सेटिस्फाइड हैं। तो डिफरेंट जो 5-6 डायमेंशंस होंगी उनके बारे में आपसे वो क्वेश्चंस पूछ लेंगे और उन 5-6 क्वेश्चंस को आप सम अप करेंगे और उसकी एवरेज निकाल के, ठीक है, तो उसका जो भी यानी सबमिशन स्कोर जो उसका होगा वो आपकी मेजर होगी जॉब सेटिस्फेक्शन की, ठीक है। तो आपने सारी फैसेट्स जो हैं ये बेसिकली यू कैन से दैट दीज आर द फैसेट्स ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन। तो इन सारे फैसेट्स को आपका आपने सबमिशन स्कोर निकाला और वो जो भी निकला वो आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन की मेजर है। दूसरा तरीका ये है कि सिंगल ग्लोबल रेटिंग, कि आप एम्प्लॉई से या सिर्फ ये पूछें कि हाउ सेटिस्फाइड यू आर एट योर वर्क और हाउ सेटिस्फाइड यू आर विद योर जॉब, ठीक है। तो ये एक उसकी सिंगल एक ग्लोबल रेटिंग है कि ओवरऑल आप ये पता कर लें ऑन द होल कि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है जॉब के साथ या नहीं है, ठीक है। अब हाउ सेटिस्फाइड पीपल आर इन देयर जॉब्स, in general people are satisfied with their jobs, that's what the research shows, but again it depends upon the facets of satisfaction, tend to be less satisfied with pay and promotion opportunities normally। जो organizations ने जो research या data report करता है, of course ये data या research हमारे जो ईस्टर्न सेटिंग्स हैं, एशियन सेटिंग्स हैं, पाकिस्तान में हमारे पास इस तरह कोई डाटा सच अवेलेबल नहीं है, हम कुछ नहीं कह सकते। ये सारी अमेरिकन बेसिकली मेनली स्टडीज़ हैं, अमेरिकन बुक्स हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, तो ये उन्हीं की रिसर्चेज हैं। हमारे पास इस तरह की ना कोई रिसर्चेज है ना हमारे पास कोई डाटा है जो हम अपने कंट्री का या उसके आप बता सकें, ठीक है। ये इन ऑफ कोर्स वो एडवांस्ड हैं, दे आर मच मोर अहेड ऑफ अस, उनकी रिसर्च बहुत ज़्यादा है हमसे, तो उन्हीं के ही हमें डाटा या रिजल्ट्स जो हैं वो यहाँ पे इसलिए वेल अनफॉर्चुनेटली हमें वही रिपोर्ट करने पड़ेंगे। अब इसमें यही है कि पे के साथ इंक्रीजिंग लोग सबसे ज़्यादा डिससेटिस्फाइड होते हैं पे और प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ या प्रमोशन के साथ, बट पे के साथ इट ओनली इन्फ्लुएंसेस योर जॉब सेटिस्फेक्शन अप टू अ डिग्री, अप टू अ पॉइंट। जैसे एक रिसर्च, अगेन ये अमेरिकन ही सारी रिसर्च है, ये शो करती है कि $40,000 अ ईयर तक अगर आपके पास हो, आपको पे मिल रही है, तो उसके बाद से आपका पे का जॉब सेटिस्फेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं रहता। यानी कि जिन लोगों की $40,000 पर ईयर से ज़्यादा पे हो उनको it does not enhance their job satisfaction further। फिर वो दूसरे फैक्टर्स आ सकते हैं। तो कैन यू लिंक इट टू द मोटिवेशन थ्योरी, इट शुड रिमाइंड यू ऑफ द मोटिवेशन थ्योरी के जैसे हर्सबर्ग उसकी मैस्लो की थ्योरी है कि आपकी जब बेसिक नीड्स मीट हो गई, तो इसमें यही आप देख सकते हैं कि आपकी बेसिक नीड्स जब सफिशिएंटली मीट हो रही हैं तो फिर आप हायर ऑर्डर या ग्रोथ नीड्स के बारे में यू आर मोर वरीड अबाउट देम, फिर आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में मोर वरीड होती हैं और वो आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन को ज़्यादा डिटर्मिन कर सकती है। वो वाली नीड्स आपकी सेटिस्फाई होना फिर उस लेवल पर ज़रूरी होता है, बिकॉज ये वाली नीड्स तो आपकी मीट हो रही होती हैं। तो beyond a certain level pay may not be related to job satisfaction as much as it is at a lower level of pay। Personality of course it can influence your job satisfaction, दूसरे attitudes को भी influence कर सकती है। Some people tend to be by nature by default, कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट में होते हैं, कुछ नेगेटिव इफेक्ट में होते हैं, यानी कि सम पीपल हैव पॉजिटिव इमोशंस, सम हैव नेगेटिव इमोशंस, सम हैव मोर अग्रेसिव होते हैं, वायलेंट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव फीलिंग्स उनकी होती हैं, नेगेटिव ओवरऑल असेसमेंट्स होती हैं सिचुएशंस के बारे में, उनकी कोर इवैल्यूएशंस नेगेटिव होती हैं, देयरफॉर दे टेंड टू बी मोर डिससैटिस्फाइड। सो दो लोग डिपेंडिंग अपॉन देयर पर्सनैलिटी, ड्यू टू देयर पर्सनैलिटी डिफरेंसेज ऑन अ सिमिलर जॉब विद एवरीथिंग सेम, ठीक है, वन माइट बी मोर सेटिस्फाइड एंड द अदर माइट बी डिससैटिस्फाइड एट वर्क। सो देयर आर डिफरेंट वेज कि आप डिससैटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस करें, एंड ऑफ कोर्स उनमें से एक ये कि आप एग्जिट कर जाएं, ठीक है, यू लीव द ऑर्गेनाइजेशन इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड। दूसरा ये कि रेज योर वॉइस, से गिव योर ओपिनियन, ठीक है, अटेम्प्ट्स करें सो दैट यू कैन इम्प्रूव द सिचुएशन, इम्प्रूव द कंडीशंस जिनसे आप सेटिस्फाइड हो सकें जॉब के साथ। तीसरा ये कि लॉयल्टी, पैसिवली यू वेट टू इम्प्रूव द सिचुएशन, शो लॉयल्टी। एंड द नेक्स्ट वन इज द निग्लेक्ट, जस्ट निग्लेक्ट द सिचुएशन एंड यू अवेट द कंडीशंस टू वर्सन, कि ठीक है और ख़राब होती हैं तो हों। तो ये डिफरेंट रिएक्शंस हैं जो डिफरेंट एम्प्लॉइज डिफरेंट ऑफ कोर्स रिएक्शंस शो कर सकते हैं when they are dissatisfied। Of course, job satisfaction impacts a lot on performance, on behavior, ठीक है। तो ये बेसिकली बिहेवियर की एग्जांपल्स हैं, नॉट ओनली ऑफ परफॉर्मेंस। ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस के साथ भी ये सारी लिंक्ड हैं। तो अब आप देखें कि प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करती है आप सेटिस्फेक्शन, जितने आप सेटिस्फाइड ज़्यादा होंगे उतनी ही आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसी तरह आप जितने सेटिस्फाइड जॉब के साथ ज़्यादा होंगे उतनी आप एब्सेंटिज्म आपकी थोड़ी होगी। अगर सेटिस्फाइड नहीं होंगे आपको ऑफिस जाने को दिल नहीं करेगा, काम करने को दिल नहीं करेगा, फ्रीक्वेंटली आप क्या करेंगे कि लेम एक्सक्यूजेस देंगे, मैं आज सिक हो गया हूँ, फ्रीक्वेंट आपकी एब्सेंसेस होंगी
डिफरेंट बहाने बनाएंगे। फिर आप सेटिस्फेक्शन एंड टर्नओवर का साथ, अगेन अगर आप सेटिस्फाइड होंगे तो आपकी टर्नओवर इंटेंशंस कम होंगी, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे जॉब के साथ, यू विल ट्राई टू फाइंड जॉब एल्सवेयर। ठीक है, इधर उधर अपने सीवी फेंकेंगे, लोगों से बात करेंगे, ट्राई टू फाइंड जॉब ऑल्टरनेटिव्स एंड टर्नओवर ज्यादा होगा। सेटिस्फेक्शन जितनी ज्यादा होगी उतना ओसी भी ज्यादा होगा। आप अपनी जॉब के साथ सेटिस्फाइड हैं, आप यू विल ट्राई टू हेल्प अदर्स एज वेल। फिर आपका खुद ही ऑटोमेटिकली आपका दिल भी करता है व्हेन यू आर सेटिस्फाइड विद योर ओन जॉब। बट इफ यू आर नॉट, देन यू डोंट एक्सटेंड सच हेल्पिंग बिहेवियर्स। आप कहते हैं कि मैं तो खुद अपनी जगह फंसा हुआ हूँ। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ बड़ा पॉजिटिव लिंक इसका रिपोर्ट हुआ, बिकॉज जब जितने आप सेटिस्फाइड ज्यादा होंगे उतनी आप कस्टमर्स को बेहतर सर्विसेज दे सकते हैं। यू कैन ग्रीट देम विद अ स्माइलिंग फेस, यू कैन गिव देम बेटर सर्विसेज। ठीक है, आप उनके साथ ज्यादा हेल्पिंग बिहेवियर शो कर सकते हैं, ज्यादा फ्रेंडली बिहेवियर शो कर सकते हैं, मोर रिस्पॉन्सिव, मोर क्विक हो सकते हैं, आप उनके साथ एफिशिएंट सर्विसेज दे सकते हैं। तो एज अ रिजल्ट इट इज इन जो जॉब सेटिस्फेक्शन है, इट हैज बीन रिपोर्टेड टू एनहांस कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट का मैंने आपको बताया कि इट इज अ जॉब एटीट्यूड, और इसकी 2-3 डायमेंशंस है। एक अफेक्टिव डायमेंशन है कि कितने आप इमोशनली अटैच फील करते हैं, दूसरा कॉन्टिन्यूएंस है कि क्या आपको कितनी कॉस्ट हैं, अगर आप वहां पे स्टे ना करें तो फिर आपको क्या कॉस्ट पे करनी पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन में, और तीसरी इसकी नॉर्मेटिव है विच इज द मॉरल और एथिकल ऑब्लिगेशंस दैट यू हैव। ठीक है, तो ये कमिटमेंट भी अगेन इन्फ्लुएंस करती है लॉट ऑफ एम्प्लॉई आउटकम्स को। फिर परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट के ऊपर हमने ऑलरेडी बात की है, एम्प्लॉई एंगेजमेंट के ऊपर हमने ऑलरेडी बात की है। ठीक है, उसके बाद एटीट्यूड्स जो हैं ये जैसे सेटिस्फेक्शन और कमिटमेंट, ऑफ कोर्स दे आर हाईली रिलेटेड, दे आर डिस्टिंक्ट बट दे आर हाईली रिलेटेड। अगर आप सेटिस्फाइड ज्यादा हैं तो इट इज एक्सपेक्टेड कि आप कमिटेड भी ज्यादा होंगे। अगर आपकी जॉब एंगेजमेंट ज्यादा है, इट मीन्स कि इट इज एक्सपेक्टेड कि आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा होगी, बट ऑफ कोर्स दे आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो उनमें ओवरलैपिंग जरूर है लेकिन स्टिल दे आर डिस्टिंक्ट कॉन्स्ट्रक्ट्स। तो सेटिस्फेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया कि किसकी ग्लोबल रेटिंग है और एक किसकी समेशन स्कोर है। तो ग्लोबल रेटिंग ज्यादा बेहतर रहती है। ठीक है, जब आपने सेटिस्फेक्शन को, जॉब सेटिस्फेक्शन को जानना हो, क्योंकि आप ओवरऑल पूछ लेते हैं कि जी आप ओवरऑल बता दें वेदर यू आर सेटिस्फाइड और यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर जॉब्स। अब यूएस में जो सर्वे हुआ वो ये बताता है कि पीपल आर जनरली सेटिस्फाइड विद देयर जॉब, बट इंक्रीजिंगली जो जॉब सेटिस्फेक्शन का लेवल है दैट इज कमिंग डाउन। ठीक है, अब कॉजेज क्या हैं जॉब सेटिस्फेक्शन की? एक इसमें आ गई कि मैंने आपको जैसे बताया कि पे जो है वो इन्फ्लुएंस करती है ओनली अप टू अ सर्टेन पॉइंट। मनी कैन ब्रिंग हैप्पीनेस बट नॉट नेसेसरली जॉब सेटिस्फेक्शन। ठीक है, सो पर्सनैलिटी की हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि पर्सनैलिटी भी इन्फ्लुएंस करती है। आउटकम्स हमने इसके डिस्कस किए दैट देयर आर नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, और एक वर्क प्लेस डिविएंस भी है आउटकम ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, जो कि जितने एम्प्लॉइज डिससेटिस्फाइड ज्यादा होंगे उतने वो डिविएंट बिहेवियर ज्यादा शो करेंगे। वर्क प्लेस डिविएंस को हम अपनी फ्यूचर में किसी टॉपिक में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, तो देन यू कैन रिलेट इट बेटर। अच्छा, कॉग्निटिव डिसोनेंस की हमने बात की थी कि जितनी आपकी एटीट्यूड्स और बिहेवियर में डिफरेंस होगा ना, उतनी आपकी डिसोनेंस, इसका मतलब ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माय वर्क, तो उसका आउटकम बिहेवियर मेरा क्या होना चाहिए? उसका बिहेवियर आउटकम ये होना चाहिए कि आई लीव द ऑर्गेनाइजेशन, हाई टर्नओवर हो। लेकिन अगर मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव्स ही नहीं है, आई हैव टू स्टे विद द ऑर्गेनाइजेशन बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो दैट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस। व्हेन देयर इज अ मिसमैच बिटवीन द एटीट्यूड एंड द बिहेवियर, that is a cognitive dissonance। और ये dissonance can be due to a number of reasons। inconsistency है basically attitude में और behavior में। so herein attitude is not leading to behavior which should be the case, it should lead to behavior। ठीक है, तो of course there are a number of moderating variables जो इन relations को affect कर सकते हैं attitude और behavior को। तो just I give you an example। जैसे इस केस में मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास जॉब alternatives ही नहीं है, तो जॉब ऑल्टरनेटिव क्या कर रहा है? मॉडरेट कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन जॉब सेटिस्फेक्शन एंड टर्नओवर। अगर आपके पास, मेरे पास ऑल्टरनेटिव्स ही नहीं है तो मैं जॉब फाइंड नहीं कर सकती, आई हैव टू डू दिस जॉब, मेरा टर्नओवर नहीं हो सकता वेदर आई एम डिससेटिस्फाइड विद माय जॉब। सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। तो ग्लोबल इम्प्लीकेशंस इसकी यही हैं कि मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बताया है कि आपका जो है वो यूएस का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली वेस्टर्न कल्चर्स के ऊपर तो एप्लीकेबल है ही है, क्योंकि जॉब सेटिस्फेक्शन यूएस का कॉन्सेप्ट है। ईस्टर्न पे एप्लीकेबल है या नहीं है, देयर इज नो रिसर्च, वी डोंट नो। बट जो इंडिकेशंस हैं वो ये हैं कि शायद
जो ईस्ट में, ईस्टर्न कल्चर्स में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इतने सेटिस्फाइड ना होते हो, क्योंकि आपको पता है हमारा कलेक्टिविस्ट कल्चर है कंपेयर टू द इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर जो वेस्टर्न इकोनॉमीज़ में, यूएस वगैरह में है। इंडिविजुअलाइजेशन पे वो फोकस करते हैं, अपनी ओन हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन पे फोकस करते हैं, ठीक है। हमारी जो है वो लॉट्स ऑफ टाइड अप रिलेशनशिप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब मैं बेशक सेटिस्फाइड ना हूँ अपनी जॉब से, लेकिन मैं टर्न ओवर नहीं कर सकती, ऑर्गेनाइजेशन को नहीं छोड़ सकती, बिकॉज मेरी शायद ऑब्लिगेशंस होंगी और फैमिली ऑब्लिगेशंस होंगी, आई कैन नॉट मूव एल्सवेयर, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे मॉडरेटर्स हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं बिकॉज ऑफ द कलेक्टिविस्ट कल्चर। हम अकेले ऑन आवर ओन वी आर नथिंग, वी आर एज इंडिविजुअल्स वी आर नथिंग, वी आर एज ग्रुप, एज फैमिली, एज ग्रुप। हम ऑर्गेनाइजेशन को भी एक ब्रॉडर फैमिली कंसिडर करते हैं बिकॉज वी हमारी कलेक्टिविस्ट कल्चर्स हैं, ठीक है। तो इस वजह से इट इज़ इंडिकेटेड कि शायद जॉब सेटिस्फेक्शन कम हो इन द ईस्टर्न कल्चर्स, ठीक है। तो मैनेजर्स को अंडरस्टैंड करने चाहिए एम्प्लॉय एटीट्यूड्स, बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर लिंक्ड टू एम्प्लॉय बिहेवियर्स, जो हमने एक नंबर ऑफ बिहेवियर्स देखे। अच्छा, ये कुछ चैप्टर चेकअप में कुछ एटीट्यूड्स हैं आपके लिए, इनको आप पहले खुद सॉल्व करें, उसके बाद आप इनको इनके रिजल्ट्स देखिएगा, ठीक है। तो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज लेक्चर. I hope you enjoyed today's discussion. So I thank you very much and I wish you good luck for your preparation and for understanding. Thank you very much. Allah Hafiz.